Hello and welcome back again to the part 2 of chapter carbon and its compounds. So in this chapter we have already covered uh, topics like occurrence of carbon, its versatile nature, covalent bonds, and why carbon form covalent bonds, Lewis-Strauss structure, how double bond and triple bonds are formed, why carbon form a large number of compound relating to its properties of catenation where it forms linear chains or branches, as well as tetravalency, allotropes of carbon where we studied about diamond, graphite and fullerenes, right? So all these have been covered in our part 1. ये सारे टॉपिक पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं. Now we are starting off with hydrocarbons. So hydrocarbons, as the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नीचे ना एक फोटो दिखा रखी है. इसमें दिख रहा है आपको ये बच्चा जो है बिल्कुल किताब पे सिर रख के जो है बैठा हुआ है. इट मीन्स इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया. बोलते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. अभी कुछ और पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग में नहीं जाएगा. सेम इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ है. इनके अंदर कोई भी एडिशन पॉसिबल नहीं होता. इट मीन्स दे आर नथिंग कैन नॉट बी एडिड इन देम. ठीक है, और ज्यादा हाइड्रोजन का एडिशन हो नहीं सकता. So they are characterized by presence of single bond and they are called as alkanes. They are called as alkanes, right? Unsaturated hydrocarbons, on the other hand, addition possible hai. They are of two types. You have those hydrocarbons which are characterized by double bond as well as hydrocarbons where you have carbon-carbon triple bond. So they are known by the names alkenes, which have double bond between two carbons, and alkynes, which have triple bond, right? So next we will study about alkane, alkene, and alkyne. So their general chemical formulas are written here. CnH2n plus 2, this is for alkane, CnH2n alkene, and CnH2n minus 2, that is for alkyne. So let's form their compounds. तो यहाँ पर लिखा हुआ C1 C2, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ n. जब n का वैल्यू 1 रखेंगे इट बिकम्स CH4, राइट? अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए. तो इट मींस एल्कीन और एल्काइन का C1 जो है वो पॉसिबल नहीं है. However, in case of alkane where we have two carbons, we can easily form ethane. Here we can form ethene and here we can form ethyne. Similarly, you have right. So in all these cases, you see the two successive hydrocarbons in any of these, they are differed by a CH2 ग्रुप. कितना का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप. तो एक ऐसा सीरीज जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and successive compounds differ by a CH2 group. They differ by a CH2 group or an atomic mass of 14 units. This is called as a homologous series. इसको हम क्या बोलते हैं? Homologous series, right? नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम ऐसा जुड़े जो उसको क्या बना दे? रिएक्टिव, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. अ ग्रुप, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which makes a hydrocarbon reactive and decides its chemical properties, that is called as a functional group, right? नेक्स्ट वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज आइसोमर्स. आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट. एक एग्जांपल करके देखते हैं. पेंटेन का मैं एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने. पेंटेन, नेम सजेस्ट 5 कार्बन एटम्स, रेस्ट विल बी फिल्ड बाय हाइड्रोजन. तो यहाँ पर कितने हैं? 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, राइट? एक स्ट्रक्चर हो गया. This is called as N-pentane or normal pentane.
Next, we connect a carbons adjacent to other carbon and again fulfill its valency. This becomes isopentane, right? In the third one, I will join all the carbon with a single carbon and now fulfill their valency. This becomes neopentane, right? So these are isomers. Similarly, you can draw isomer for hexane, butane as well as, right? Okay. Next and the most important topic we have is nomenclature of carbon compounds. सी फॉर नॉमेनक्लेचर, आपको ये जो दो टेबल हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं इनको एज इट इज याद करना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल जो है आपको पहले दिखा दी गई है। इसके अलावा हम और क्या क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, वी हैव substituents, a root word, type of bond which will suggest whether we are dealing with the type of hydrocarbon, that is alkane, alkene or alkyne. Now most important is how do we write the name of the compound. To write the name of compound सबसे पहले we will see कि क्या उसके अंदर कोई substituent group है या नहीं। substituent group कौन सा, क्लोरो, ब्रोमो, राइट, मिथाइल, इथाइल, ये सब क्या होते हैं substituent groups। उसके बाद we will count the number of carbon and we will write the root word for the number of carbon. Then we will see the bonds in that compound, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन, जिसका की वर्ड क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, एन। अगर डबल बॉन्ड है इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, राइट। देन वी विल सी कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, उसका पोजीशन वी विल सी। एंड फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा, जैसे अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओ एल, एल्डिहाइड का क्या होता है, ए एल, कीटोन का क्या होता है, ओन, राइट। तो एक नाम लिख के देखते हैं, बहुत सिंपल है। वी हैव 4 carbon, right? And in one of the carbon we have a substituent group called Cl, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन हटाया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रखा, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो नाम में क्या आ गया, सबसे आगे क्या आ गया, क्लोरो। रूट वर्ड वी विल सी, रूट वर्ड कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, कितने रूट वर्ड है, 4 कार्बन। ब्यूट, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यस, दिस बिकम्स क्लोरो ब्यूटेन, राइट। डबल बॉन्ड के साथ देख लेते हैं एक, क्लियर। ओके, चलो। तो क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नो, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो सीधा किस पे जाएंगे, रूट वर्ड पे। रूट वर्ड पे देखो कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर पर रखने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स हमारी जो काउंटिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आए, लोएस्ट रैंक पर आए, राइट। तो हम हमारी काउंटिंग को क्या करेंगे अब, रिवर्स, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 है तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट। कितने का, कौन से वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर, इट बिकम्स 2। एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन। so this becomes pent to ene, clear। moving on to the next topic, that is chemical properties of carbon compounds। so the first property is combustion। combustion क्या होता है, burning of carbon compound। जब भी जलाओगे कार्बन कंपाउंड को क्या मिलेगा, एयर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड
लाइट, राइट। तो यहाँ पर मीथेन, मीथेन क्या होती है, नेचुरल गैस, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है बर्न करा, क्या मिला, CO2 प्लस वाटर, हीट एंड लाइट। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं तो बैलेंस करो, 2 एंड हेयर ऑल्सो 2, राइट। नाउ इट्स बैलेंस, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दे बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कैसे जलते हैं, दे बर्न विद अ येलो स्मोकी फ्लेम, राइट। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर अदर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगी, जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल को जो है ऑक्सीडाइज कर दिया गया है टू गिव आउट इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल में क्या, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है, आइदर दिस और दिस। एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन का मतलब क्या है, इसको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करा जाता है। दिस इज एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, हीट करो उसके साथ, इट विल गिव आउट इथेनोइक एसिड, क्लियर। या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कर दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट दे आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं उस रिएक्शन में। उस रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होते कहीं पर भी, जितना कैटलिस्ट डालोगे उतना ही वो रिएक्शन के बाद आपको वापस मिल जाएगा। बस क्या है, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पर क्या है, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर देता है वेजिटेबल घी में। एक और खास बात है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हेल्दी होता है, जबकि वेजिटेबल घी इट बिकम सैचुरेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर दिया अब उसके अंदर, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया उसके अंदर तो इट बिकम्स हार्मफुल। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है, दिस इज इथीन C2H4, addition of hydrogen in the presence of palladium and it becomes ethane, right। तो डाई हाइड्रोजन जो है ऐड करा गया, ठीक है, नाउ इट बिकम्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज ट्यून इन फॉर द पार्ट 3, ठीक है, इन विच वी विल कवर द लास्ट टॉपिक, ethanol, ethanoic acid and the Michel formation in soaps and detergents. Thank you.